So 6 rebel Congress MLAs, 3 independents have joined the BJP right now. Union Minister Anurag Thakur speaking. Let's cross live. के रूप में भी देखने को मिला कि क्या आक्रोश जनता में है अपनी ही चुनी हुई सरकार के प्रति। और इन 6 विधायकों ने उस समय राज्यसभा के चुनाव में श्रीमान हर्ष महाजन जी को चुनने का कार्य भी किया। आज मैं ज्यादा लंबी बात ना करते इतना ही कहूंगा कि आपने अनेक राज्यों में देखा है कि बड़ी तादाद में लोग अन्य दलों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये भी चाहते हैं कि मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प रखा है, उस विकसित भारत में इनका भी योगदान हो। हम सबका भी यही है कि जितना बड़ा हमारा भारतीय जनता पार्टी का परिवार होगा, उतनी ताकत के साथ हम जनता की सेवा कर पाएंगे। और हिमाचल प्रदेश को तो मोदी जी ने अपना दूसरा घर माना है, कोई कमी कहीं नहीं छोड़ी। जो वर्षों से अटल टनल का काम बंद था वो भी मोदी जी ने पूरा करवाया। यहां तक कि छोटे से राज्यों को एम्स, पीजीआई के मेडिकल कॉलेज दिलाए, आईआईएम दिलाया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी और कम से कम 50,000 करोड़ की तो केवल सड़कें ही दी हैं। रेल का नाम हिमाचल प्रदेश में था ही नहीं। ये ऊना से लेकर दौलतपुर चौक की रेलवे लाइन का भी काम पूरा कराया, इलेक्ट्रिफिकेशन कराया। वंदे भारत एक्सप्रेस जो देश की चौथी चली तो हिमाचल प्रदेश से चली। बिलासपुर की रेलवे लाइन का काम तेजी से चला है, चारों ओर 4 लेन हाईवे बन रहे हैं। तो जब इतना विकास और गरीब कल्याण के काम लोग देखते हैं तो निश्चित तौर पर मोदी सरकार की नीतियों में विश्वास और बढ़ता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस विश्वास को लेकर ये सब आए हैं, मैं अपने सभी इन भाइयों को कहना चाहता हूं, ये मोदी सरकार है और मोदी की गारंटी वो है जो पूरा होने की गारंटी है। और हम लोग देश को आगे बढ़ाने में हिमाचल से भी एक बड़ा योगदान देंगे। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। पार्टी के अपने माननीय राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी से आग्रह होगा कि आपको संबोधित करें। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में आप माननीय 6 विधायक, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप भारतीय जनता पार्टी के परिवार के हिस्सा बन गए और भारतीय जनता पार्टी में जो व्यक्ति आता है उसका सदैव मान सम्मान पार्टी उनका रखती है। आप सबका भी मान सम्मान पार्टी सदैव रखेगी, यह मैं महामंत्री के नाते आप सबको कह रहा हूं। All right, so welcoming as far as the rebel Congress MLAs now to be known as BJP leaders. Amandeep, how do we understand as far as the number game are concerned? Because now they are being wholeheartedly welcomed in the BJP. They have been inducted now, and from here on they will be known as the BJP leaders. Well, absolutely, Amita. Just because they were not satisfied with the policies of Sukhwinder Singh Sukhu, and even after complaining several times to the Congress High Command, they were not being listened. And finally, they have decided to jump the shift. And in fact, on 27th of February, they have shown the real face to the Congress in Himachal Pradesh during the Rajya Sabha elections. That was the first time when they raised their voice. And in fact, after that, they remain out of the Congress bout and in touch with the BJP, and today formally they have joined BJP. So now they all were preparing for the by-elections in Himachal Pradesh, just because that would be the turning point for the Sukhu government. Only that is the point where the Sukhu government can collapse if the by-election takes place. 9 seats are getting out of the Congress. Congress is having now 34 out of 68 of House, and even BJP is having 25 MLAs so far in the House. And if these 9s get into the BJP fold and won the seats by the by-elections, so BJP will come on the majority with 35 seats out of 68 in the House. That means BJP will be forming their own government very smoothly. But in case if some of these MLAs will lose their by-elections, that turn out to be the problem for the BJP as well as Congress, just because the situation is after the joining of these 9 rebels and independents to the BJP fold, the BJP is gaining. BJP is gaining on the political grounds in Himachal Pradesh. But the worrisome situation
situation for the Congress party is they are trying to save their own courts. They are trying to remain engaged with the MLAs. What we are given to understand from our sources is, Amita, that some of the MLAs are getting more security just because they are in talks, and the Congress is suspecting those are the MLAs that are in continuously touch with the BJP, and anytime BJP can approach them and they can switch the political party. That is the reason their security has been enhanced so that minute-to-minute movement can be noticed and overchecked to these MLAs. Sukhwinder Singh Sukhu is himself in a very unstable situation and communicating with the Congress High Command, and High Command, even the Priyanka Gandhi and Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge is very much concerned to save the government in Himachal Pradesh, just because several times several Congress High Command leaders, Rajiv Shukla and certain other leaders, they remain intacted with Sukhu to stable the government. But somewhere down the line, the instability is sustaining on the grounds of Himachal for the Congress party. And in fact, so far, BJP is on a smooth line. They are having time to prepare the strategy. के बाद पता चलेगा। पूनम भी हमारे साथ फिलहाल जुड़ रही है। पूनम, अभी कांग्रेस पार्टी के क्या हाल है हिमाचल में? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो प्रतिभा सिंह जो बार बार साफ तौर पे कह चुके हैं कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी मंडी सीट से, और उनका साफ तौर पे कहना है कि जो वर्कर्स है वो डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंस वर्कर्स को दी जानी चाहिए थी वो इंपॉर्टेंस उन्हें नहीं दी गई, जिसकी वजह से जो कांग्रेस पार्टी अब हिमाचल की अगर हम बात करें तो उतनी ज्यादा स्थिति जो है अब अच्छी नहीं है। साथ ही अगर हम बात करें 6 जो रिबेल हैं और 3 जो इंडिपेंडेंट है, वो अगर ज्वाइन करते हैं तो 9 जो है बाय इलेक्शन होंगे 9 सीट्स पे। उसके बाद जो है आंकड़ा जो है 34 का हो जाएगा। तो अब जो है अगर बीजेपी 9 की 9 सीट जीती है तब 34 का आंकड़ा हो जाएगा। उसके बाद भी बीजेपी को अभी तक जो हमें सोर्सेज से पता चल रहा है कि अभी जो है कांग्रेस पार्टी के 2 से 3 एमएलए फिर से कांटेक्ट में है बीजेपी के, तो कहीं ना कहीं बीजेपी स्ट्रांग नजर आ रही है। और अभी अगर हम बात करें तो जिस तरह जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है अब कहीं ना कहीं डगमगाएगा, क्योंकि अब जो है स्थिति जो है काफी मुश्किल में आ गई है जो सुक्खू सरकार की है। जो अब तो स्थिति अब काफी जिसे कहते हैं कि कांग्रेस सरकार जो है कहीं ना कहीं डरी नजर आ रही है कि कुछ भी हो सकता है हिमाचल में। जी, लेकिन अमनदीप, how do we understand as far as within the Congress is also concerned, what happens with Vikramaditya Singh, because he had tendered his resignation, didn't say anything much on that, didn't step down, but he also met with the rebel Congress MLAs, now BJP leaders. How is the situation looking like? Well, absolutely, Amita. That was the most uncertain point for Vikramaditya as well as Congress. Just because Vikramaditya is the one person who was leading the group of the rebels, and he was the one who prepared them to show the teeth to the Congress party when their voices were not being listened. And all the 6 rebel Congress MLAs backed Mr. Rashid Alvi of the Congress party. Sir, the 6 Congress MLAs involved in cross-voting, you are disqualified, have now joined the BJP today. Yeah, we were expecting it, and you have said yourself they are rebel, and they had no option except to join Bharatiya Janata Party. Congress Party had already taken action against all of them. That is the reason they have left Congress and have joined Bharatiya Janata Party. So we've been speaking to a few of them. They have been saying that the number could increase. There are many other Congress MLAs who feel humiliated and insulted within the Congress. It is absolutely hypothetical. Nobody can predict what will happen tomorrow. And they are in habit to speak all this nonsense. Our government is absolutely intact. There is no problem at all. This government will continue and will fulfill its full term. Sir, but so far the numbers are very precariously stacked, sir. Doesn't look very much in favor of Sukhwinder Singh Sukhu. Looking at how the situation has been developing and progressing, sir, how do you see it? Will Sukhu Sarkar complete full term? Yeah, definitely. Sukhu is competent enough to run this government, and I am sure that no member of Legislative Assembly will join Bharatiya Janata Party. All right. Rashid Alvi sir, thank you very much for joining in. That has been the point of view. पूनम, हमने सुना कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें अंदेशा था क्योंकि ये 6 के 6 बीजेपी में आप ज्वाइन कर चुके हैं, बीजेपी के लीडर्स हैं, साथ ही में 3 इंडिपेंडेंट्स भी आप बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन उससे पहले हमने बातचीत करी थी राजेंद्र राणा जी, जो एक अब बीजेपी लीडर बन गए हैं, बीजेपी में आज शामिल हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले ज्वाइनिंग से पहले आखिरकार उन्होंने क्या कहा था, एक बार वो सुन लेते हैं।
राजेंद्र राणा जी, आप क्या हमारे पास कोई जानकारी दे सकते हैं सर, आखिरकार हिमाचल प्रदेश में चल क्या रहा है सर? देखिए, ऐसा है कि हम 6 लोगों को निष्कासित किया था और संवैधानिक तरीके से जो है इनको हम सब 6 के 6 लोगों को निष्कासित किया था। हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए थे और 18 तारीख को सुनवाई हुई थी। हमें ऐसा लगा कि कोर्ट में कई तरह की फॉर्मेलिटीज हैं, ये मामला लिंगर ऑन हो सकता है, इसलिए हमने चुनाव में जाने का फैसला लिया है और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और चुनाव में जाएंगे। तो यानी कि पंचकुला से जहां तक हमने देखा कि आप और बाकी सारे एमएलए जो एक तरीके से पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि अब शायद हो सके कि मामला सुलझ जाएगा, अब ऐसा सुलझता हुआ तो नहीं नजर आ रहा है। आपके साथ क्या अन्य और भी कोई लीडर्स होंगे जो शामिल हो सकते हैं राणा जी? देखिए, आज तो हम लोग 6 जो कांग्रेस से निष्कासित हुए हैं वो शामिल हो रहे हैं और 3 इंडिपेंडेंट हैं जिन्होंने पिछले कल विधानसभा से त्याग पत्र दे दिया है, वो 3 लोग वो भी शामिल होंगे। और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी में, सरकार में, जो कि घुटन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी इस तरीके से जो स्टेप लिया है, इस तरीके का जो फैसला लिया है, कि पिछले 1 साल से ज्यादा समय हो गया था जहां हम लोग घुटन भी महसूस कर रहे थे, हमें जलील भी किया जा रहा था, काम नहीं किए जा रहे थे और पार्टी ने जो घुटन की आखिरकार वजह क्या है राणा जी? वजह यही है कि पार्टी में जलील किया जा रहा था, मुख्यमंत्री जलील करते थे, काम नहीं करते थे और प्रदेश की जनता को जो गारंटीज दे रखी थी, लोग हमें पूछते थे, वो गारंटीज पूरी नहीं हो रही थी। हर चीज से समझौता किया जा सकता है, परंतु स्वाभिमान से कोई आदमी समझौता नहीं करता है। तो आपत्ति सिर्फ चीफ मिनिस्टर के साथ थी सर या कांग्रेस लीडरशिप के साथ भी? पार्डन? क्या आपत्ति चीफ मिनिस्टर सुक्खू के साथ थी या कांग्रेस लीडरशिप के साथ भी सर? देखिए, सुक्खू जी के साथ तो आपत्ति थी क्योंकि वो डील वो कर रहे थे, दलील वो कर रहे थे और हाईकमान सुनाई नहीं करती थी, या हाईकमान की वो सुक्खू जी नहीं सुनते थे।